Good morning, students. Last lecture we have discussed about the meaning of balance sheet and the format of balance sheet. In this lecture we are going to see the adjustment of final account. Okay, you already aware that final account is consisting of trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, with the help of trading account, profit and loss account and balance sheet we prepare partnership final account. Okay, along with trading account, profit and loss account and balance sheet you have to solve adjustment of partnership final account. Okay, without adjustment you cannot complete your trading account, profit loss account and balance sheet. Okay, adjustment means additional information. Okay, additional information means what? During the year or current year any extra transactions occur. Okay, or outstanding expenses are occur, outstanding income, prepaid expenses or prepaid income occur during the year. So at that time you have to adjust this information along with trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट. ओके, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, सो इस लेक्चर में हम जो है एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, जैसे कि आपको पता है कि फाइनल अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से बनता है. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा आप जो है एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करते हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए. एडजस्टमेंट के मदद से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकते हैं. बिना एडजस्टमेंट के हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में ऑकर हैपन मतलब होता है उसका. ओके, अब जैसे एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, डेप्रिसिएशन, ये सब जो है एडजस्टमेंट में आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं. ओके, तो उनको एडजस्ट करना ज़रूरी है. तो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के मदद से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरी तरह हम कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, so now we will see the adjustment and their first effect and second effect. Okay, so we will see one by one. You already aware about the format of trading account, profit loss account and balance sheet. Okay, with the help of that you can easily solve the adjustment of partnership final account. So now we will see first closing stock. Closing stock first effect goes on balance sheet asset side, second effect trading account credit side. Okay, if suppose you by head all the formats of trading account, profit loss account, balance sheet, then it is easy for you. Okay, if suppose those students already by head the format of trading account, profit loss account and balance sheet, they will easily solve the adjustment, they will easily adjust the effects of transactions. Okay, and it will be revised for that particular students. Okay, if suppose those students who have not learned, those students who have not by heard this format, so it will be difficult for that particular students. Okay, so those who yet not by heard this format, so they have to solve that format, they have to by heard that format, they have to learn that format. Okay, then only you can easily solve the adjustment of particular transactions. So first is closing stock. You already aware about that. Closing stock goes on trading account credit side and balance sheet asset side. Okay, so first effect will goes on balance sheet asset side, second effect trading account credit side. Second is outstanding expenses. Outstanding expenses first effect goes on add to the particular expenses on the debit side of trading profit and loss account. Okay, so first effect is goes on trading profit loss account debit side. Okay, you have to add in that particular expenses. Second effect goes on balance sheet liability side. Okay, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपका जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा. ओके, और सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा. ओके, थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यू हैव टू रिड्यूस, you have to deduct from trading and profit loss account on debit side particular expenses which are prepaid expenses. And second effect will goes on balance sheet asset side.
प्रीपेड एक्सपेंस जो है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से डिडक्ट हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ओके, so this adjustment you have to buy ahead. Okay, this adjustment, first effect and second effect, you have to buy ahead. Without this adjustment you cannot solve trading profit loss account and balance sheet, so you have to buy ahead all these adjustments. Okay, income received in advance, pre-received income, deduct from the particular income on credit side of profit loss account. Just above we have discussed prepaid expenses. Prepaid expenses goes on trading profit loss account debit side, but prepaid income will goes on credit side of profit and loss account. Okay, so you have to deduct from the particular income on the credit side of profit and loss account, and second if it will goes on balance sheet liability side. Fifth is income receivable. Income receivable means what? Outstanding income add to the particular income on the credit side of profit and loss account. Okay, and second effect will goes on balance sheet asset side. So income receivable is outstanding income. Okay, you have to add to the particular income on the credit side of profit and loss account, and second effect balance sheet asset side. 6, bad debts, that is additional or new bad debts, show to the debit side of profit and loss account, add to all bad debts if any. Okay, so bad debts is loss for us, so you have to you have to show on profit and loss account debit side, add to all bad debts. Okay, all bad debts is already given in the format. Okay, all bad debts is given in trial balance, so you have to write all bad debts first. After that you have to add new bad debts. Okay, and second effect is deduct from sundry debtors in balance sheet asset side. Second effect will be deducted from sundry debtors in balance sheet asset side because bad debts is related with sundry debtors. Seventh is provision for doubtful debts, that is reserve for doubtful debts. We can say RDD, reserve for doubtful debts. If suppose new RDD is given, so you have to show on profit and loss account debit side. Okay, and deduct from sundry debtors in balance sheet asset side. So RDD is also related with sundry debtors, so you have to show on debit side profit and loss account, and second effect will goes on sundry debtor balance sheet asset side. Okay, so you have to deduct from sundry debtors. So deduct from sundry debtors in balance sheet asset side, and next is reserve for discount on debtors. If suppose we have given discount to debtors, so it is loss for us, so it will goes on profit loss account debit side. You have to show discount allowed. Okay, and you have to add to discount allowed. Okay, so you can show separately as discount allowed. Okay, and second effect deduct from sundry debtor balance sheet asset side. Second effect will goes on balance sheet asset side, you have to deduct from sundry debtors. Okay, depreciation show on the debit side of the profit and loss account. Depreciation is loss for us, so it goes on profit and loss account debit side, and balance sheet asset side deduct from the particular assets. 10, interest on capital show to the debit side of profit and loss account. So interest on partners capital goes on profit and loss account debit side, and second effect goes on partners capital current account credit side or add to capital current account. We already discussed in introduction to partnership regarding fixed capital method and fluctuating capital method. In that we have seen partners capital account and partners current account. So if suppose you miss this lecture, so you can go and watch that particular lectures on fixed capital method and fluctuating capital method, so you can go through that lectures. Okay, with the help of that lecture you can easily understand the partners capital current account. Okay, so here interest on capital goes on profit and loss account debit side because it is expenditure for us, and second effect will goes on partners capital current account credit side. Okay, if suppose you are not preparing partners capital current account, you can add directly to partners capital current account in liability side. Okay, I hope you understand this. Now next is interest on drawings. Interest on drawings, first effect show to the debit side of partners capital current account or less from capital current account. Second effect show to the credit side of profit and loss account. Interest on drawing is income for firm, so it goes on profit and loss account credit side and debit side of partners capital current account or less from capital current account. We already discussed in lecture number 2nd. So second is interest on loan taken
if suppose you are taking loan, so you have to pay interest to banks, so it is expenditure for us, so it goes on profit loss account debit side. Okay, and second effect, balance sheet liability side, add to loan taken. Okay, so you have to add, if suppose you are taking loan from the bank, so you have to add in bank loan balance sheet liability side, and it is expenditure for us, so it goes on profit loss account debit side. Next adjustment is interest on investment and on loan given. First effect will goes on credit side of profit and loss account, and second effect balance sheet asset side. Okay, why it goes on credit side of profit and loss account? Because it is income for us. Okay, and it is assets for us, so that's why it goes on profit and loss account credit side and balance sheet asset side. 12, insured goods destroyed by fire or accident. So it is very very important adjustment, so you have to learn these adjustments. Okay, it comes in your board exam. Insurance goods destroyed by fire or accident, so it is loss for us, so it goes on trading account credit side gross amount. Okay, and second effect balance sheet asset side claim amount, and profit and loss account debit side amount of loss. Okay, insured goods destroyed by fire. If suppose you insured a particular goods, okay, if suppose in future if your goods get destroyed in your go down, or it may be through accident, okay, it destroyed through accidents, so at that time you can claim to the insurance company, and insurance company can provide your claim. Okay, so at that time you will receive the amount, so that amount will goes on balance sheet asset side. Okay, and if suppose you get destroyed, okay, so that particular amount goes on trading account credit side. So you have to check the difference between the gross amount and claim amount, so difference amount will be your loss or will be your profit. Okay, so always comes loss in goods destroyed by fire, it always come loss. Okay, if suppose loss is occur, so you have to show profit and loss account debit side. Okay, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होता है आपके गोडाउन में, बरोबर, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. ओके, लेकिन अगर उस गुड्स के ऊपर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा. ओके, अगर आपने क्लेम किया है, अगर आपके गुड्स को डिस्ट्रॉय हुआ है फायर की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से, तो आप क्लेम कर सकते हो कंपनी में. अगर कंपनी क्लेम दे रही है आपको, तो आपके लिए इनकम होगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. और जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसका ग्रॉस अमाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. और उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा, वो आपके लिए लॉस रहेगा. इफ़ सपोज अगर आपको क्लेम पूरा मिल रहा है तो आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पार्ट क्लेम मिल रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक योर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ ₹10,000 and you claim for ₹5,000. Okay, so remaining 5,000 will be your loss, so that particular loss amount will goes on profit and loss account debit side. Okay, I hope you understand this. अगर मान लो कि आपका कुछ डिस्ट्रॉय होता है ₹10,000 से, उसमें से क्या हुआ कि आपका इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो 5,000 का है, और आपने क्लेम किया 5,000 का, तो रिमेनिंग जो 5,000 है वो आपके लिए क्या है, लॉस है. बाकी का 5,000 तो आपको मिल गया 10,000 में से, तो जो 5,000 जो बचा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो जो लॉस अमाउंट है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट. इफ सपोज योर गुड्स uninsured, so at that time if suppose your goods destroyed by fire or accident, so you will not get any claim. Okay, you cannot go to insurance company for claiming that particular goods destroyed by fire or accidents, so here you will get loss. Okay, so if suppose loss occur, so you have to show profit and loss account debit side, and second effect will goes on show to the credit side of trading account. अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट अगर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है. इंश्योर्ड गुड्स मीन्स आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है. अनइंश्योर्ड मतलब क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया गुड्स के ऊपर, तो यहाँ पे तो आपको क्लेम नहीं मिल सकता है. आप कंपनी पे जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे क्लेम चाहिए करके. ओके, तो यहाँ पे जो है आपको लॉस होगा. मान लो कि इफ सपोज यू गेट अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ फायर बाय 10,000. ओके, एंड यू हैव नॉट टेकन एनी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स, so entire 10,000 will be your loss for you, because you have not taken any fire insurance policy. Okay, so that's why it is loss for us. So I hope you understand this. Okay, it is very very important adjustment, your board exam point of view. So next adjustment is goods stolen. If suppose your goods stolen by theft, then goes on profit loss account debit side, and second effect
क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर गुड्स स्टोलन होता है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो अगर आपने गुड्स को ना फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इफ सपोज यू आर गिविंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सो फर्स्ट इफेक्ट विल गोज ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड and add in advertisement, and second effect show to the credit side of trading account। ओके, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और एडवर्टीजमेंट में आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, और क्रेडिट साइड में जो है कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, 15 इज गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम परचेस अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और परचेस में से आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो और परचेस अकाउंट में से आप क्या कर सकते हो, उसको माइनस कर सकते हो। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको शो करते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट साइड। ओके, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा अगर आपने गुड्स को जो है पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है तो। 16 एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अगर आपका परचेस का ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड नहीं किया है आपने, इफ सपोज यू मिस to record the transaction of purchase, so at that time you have to show unrecorded purchases। okay, so if suppose unrecorded purchases happen, so you have to show purchase account, okay, trading account debit side, add to purchase account। okay, and second effect add in creditors in liability side of balance sheet। okay, unrecorded purchases का transactions होता है तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस में ऐड करना है और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड करना है। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, सेल्स इज रिलेटेड विद कस्टमर, परचेस इज रिलेटेड विद सप्लायर। सो अनरिकॉर्डेड सेल्स हैपन, सो यू हैव टू शो बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, ऐड इन डेटर्स। ओके, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यू हैव टू शो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है ये आपका कस्टमर से रिलेटेड होता है, तो इसमें जो है हम बैलेंस शीट में जो है कस्टमर में ऐड कर देते हैं एसेट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में उसको ऐड कर देते हैं। 17 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, capital expenditure means what, you have to invest only one time। okay, you have to invest one time or first time, okay, for long period of time। if suppose for example if you purchasing fixed assets, okay, fixed assets you purchase for long time not for short time, so you will invest only for one time। okay, so whenever you invest for one time na, so that expenditure will come under capital expenditure। example fixed asset, plant and machinery, land and building, okay, furniture, these are the example of capital expenditure। and revenue expenditure means what, revenue expenditure are those expenditure which are recurring in nature, which are continuously in nature, so you have to pay for that particular expenditure। for example like salary, you have to pay salary to employees, you have to pay rent to particular owner, okay, you have to pay electricity charges, these are comes under revenue expenditure because these occur continuously, okay, these occur recurring। okay, so I hope you understand the difference between capital expenditure and revenue expenditure। if suppose capital expenditure included revenue expenditure, so in this time what will be the effect। so first effect, trading or profit loss account debit side you have to deduct from revenue expenses। okay, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से उसको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेंगे उसमें से आप क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे। यहाँ पे समझ में आ गया आपको। सेकेंड इफेक्ट में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में उस पर्टिकुलर एसेट में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब आपके माइंड में चलता रहेगा कि सर आप बैलेंस शीट में ऐड क्यों करवा रहे हो एसेट में, तो मैं क्या बोलूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं। ओके,
तो फिक्स एसेट किससे रिलेट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ पे ऐड करेंगे? हम एसेट में ऐड करेंगे। तो इसीलिए हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में पर्टिकुलर एसेट में उसको ऐड करते हैं और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से उसको माइनस करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस में जा चुका है, इसीलिए। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट क्या होता है। अभी उसका अपोजिट दिया है यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया है, तो अब क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। अभी क्या होगा? देखो यहाँ पे दिया है ऐड टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में से हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो, और दूसरा क्या करेंगे? हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, क्योंकि वो पार्ट किसका है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। तो ऐड कहाँ पे होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। तो इसीलिए हम फर्स्ट इफेक्ट में क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसको ऐड कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या है? डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में से हम क्या करेंगे? जो एसेट दिया रहेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो एसेट में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया है, तो उस एसेट में से हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एसेट का पार्ट नहीं है। तो किसका पार्ट है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में से उसको माइनस करते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से कहाँ पे चला गया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो, आप इसको फिर से गो थ्रू कर सकते हो इस लेक्चर को। ओके, पॉज करके भी आप देख सकते हो, तो आपको इजीली समझ में आएगा, आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। सो व्हेन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अगर बिल्स रिसीवेबल आपका कैंसिल हो जाता है तो ऐसे टाइम पे आपका जनरल एंट्री क्या होगा? सॉरी, इफेक्ट क्या होगा? ऐड द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड टू सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। तो आप क्या करोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे। ओके, जो बिल अगर आपका डिसऑर्डर होता है उसको सन्ड्री डेटर में क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। ओके, और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल में से वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो माइनस। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। ओके, मतलब ये जो बिल है आपका डिसऑनर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि सन्ड्री डेटर में ऐड हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा। फिर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, अगर आपका बिल्स पेबल डिसऑनर हो रहा तो क्या होगा? तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? उसको उसका अपोजिट पार्ट हो जाएगा, बराबर। वहाँ पे सन्ड्री डेटर में ऐड किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करेंगे, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल इज रिलेटेड विद सन्ड्री डेटर एंड बिल्स पेबल इज रिलेटेड विद सन्ड्री क्रेडिटर्स। So bills payable dishonor, add the amount of bill dishonor to sundry creditors in the balance sheet. Okay, sundry creditor में जो है हम dishonor और bills payable को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? bills payable में से माइनस हो जाएगा। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ bills receivable, bills dishonor from bills payable। तो ये जो बिल पेबल डिसऑनर हुआ है उसको हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल में से क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। आया समझ में? So bills receivable dishonor, bills payable dishonor, it is very very important. Next is deferred expenses of advertisement paid for 5 years. Okay, deferred expenses of advertisement paid for 5 years. Okay, so first effect will goes on advertisement expenses related to current year debited to profit and loss account. Okay, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाएंगे। और सेकंड जो उसका रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और हम उसको कैसे शो करेंगे? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ओके, फर्स्ट इफेक्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट, अभी देखो डेफर्ड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग एक बार पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? आने वाले 5 साल में हमको क्या करेगा? फ़ायदा देगा। ओके, मतलब अगर आप करंट ईयर में आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए और वो 5 इयर्स का आपका प्लान है, बराबर। आप करंट ईयर में वो 5 इयर्स का क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, बराबर। तो करंट ईयर के हिसाब से क्या होगा? वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। ओके, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 4 ईयर का, उसको हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने एडवांस में 5 इयर्स का पेमेंट किया, एवरी ईयर तो हम पे नहीं करेंगे। डेफर्ड एक्सपेंस ऐसा होता है कि आप एक ही बार में क्या करते हो? आने वाले 5 साल का पेमेंट कर देते हो, बराबर।
तो उसका जो 4 ईयर्स का रिमेनिंग अमाउंट रहेगा ना, वो क्या होगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा शो करते हैं जैसे कि हमने उसको एडवांस में पेमेंट किया है। क्या किया हमने, एडवांस में पेमेंट किया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के ऐसे साइड में उसको प्रीपेड एडवर्टीजमेंट के तौर पर शो करते हैं कि हम लोग ने जो है उसका ऑलरेडी हम लोगों ने इसका 4 ईयर्स का पेमेंट कर दिया है एडवांस में। तो जैसे कि मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, और एडजस्टमेंट में भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक तो आपका जाएगा बैलेंस शीट के ऐसे साइड में, ओके, और जो एक्सपेंसेस रहेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो जाएगा बैलेंस शीट के ऐसे साइड में जाएगा, ओके। So next is revenue receipts included in capital receipt, example sale of goods included in sale of furniture, okay। अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका अपोजिट है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मीन्स व्हाट, आपको वन टाइम में जो है इनकम आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ओके। यू विल रिसीव वन टाइम इनकम, फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू सेल particular fixed assets, okay, so at that time you will get profit, so that profit is your capital receipts, okay। And revenue receipt means what, if you are getting recurring income, if you are getting continuous income, for example like you are getting rent, okay, if you are getting rent monthly, so it will be your income। If you are getting commission, if you are getting interest, dividend, discount, so these are the revenue receipt for you, okay। So revenue receipts इंक्लूड इन कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके। अगर यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट गलती से कैपिटल रिसिप्ट पे जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो पहला क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में उसको ऐड कर देंगे, ओके, क्योंकि सेल्स आपका क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि फिक्स एसेट जो है आपका वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बराबर, वो तो हम लोग कंटिन्यूस तो सेल नहीं करते, वो तो कभी कभार अगर आपका फिक्स एसेट्स खराब हो जाता है तभी हम उसको सेल करते हैं। लेकिन जो आपके जो गुड्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूसली हम सेल करते हैं, पर डे हम सेल करते हैं, ओके। तो वो जो सेलिंग जो करते हैं ना वो हमारा इनकम होता है, तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, बराबर। जैसे यहाँ पे लोगों ने एग्जांपल दिया है सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ फर्नीचर। आपका जो सेलिंग ऑफ गुड्स है वो गलती से कहाँ पे चला गया है, सेल ऑफ फर्नीचर में चला गया। फर्नीचर ऑफ सेल क्या आपका कैपिटल रिसिप्ट है, और गुड्स सोल्ड के आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट अगर गलती से आपका कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और सेल्स में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो तो कैपिटल रिसिप्ट में चला गया था। तो एक्चुअली में उसको जाना कहाँ पे, वो अपना रास्ता भूल गया था, तो उसका एक्चुअल में रास्ता कहाँ पे, उसका सेल्स में, क्योंकि उसको जो गुड्स जो सेल किया है तो वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाना चाहिए, तो गलती से कहाँ पे चला गया था, कैपिटल रिसिप्ट में, तो कैपिटल रिसिप्ट में से, ओके। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, सेल्स में उसको ऐड कर देंगे, और सेकेंड इफेक्ट जो है फर्नीचर में से उसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो गलती से कहाँ पे चला गया था, एसेट में चला गया था, फर्नीचर में चला गया था। तो कैपिटल रिसिप्ट में से तो हमको निकालना पड़ेगा रेवेन्यू रिसिप्ट को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे फर्नीचर में से, ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सो यू हैव टू लेस टू फर्नीचर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। So I hope you understand the capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt and revenue receipt, okay। So you have to remember the first effect and second effect of that particular expenditure and receipts, and it is very very important, okay। Last 2 years these questions comes, okay। So you have to go through this adjustment, you have to go through this 2 adjustments. Now last is commission to partners as percentage of gross profit and sales. If suppose you are giving commission to partners, okay, and you are giving commission to partners from gross profit or sales as a percentage, then you have to show debit side of profit loss account, okay, and second effect show to the credit side of partners capital current account or add to partners capital account। अगर आप पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स से, एज अ परसेंटेज के तौर पे, जो भी परसेंटेज रहेगा अगर आप दे रहे हो पार्टनर्स को, तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, ओके। सो ये थे हमारे एडजस्टमेंट, जो कि ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट होते हैं, सॉरी ये जो है आपके ओपन एडजस्टमेंट होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए रहते हैं। कुछ एडजस्टमेंट जो है आपको ट्रायल बैलेंस में दिए रहेंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के साथ में दिए रहते हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में आते हैं, और उसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके, हिडन एडजस्टमेंट को।
So I hope you understand this adjustment. So you have to by head this adjustment. So it is for today's lectures. Thank you.